So now we can draw the state table using this transition table. So this is y1 and small y1 are present state. This is capital Y1 and Y2 are what? Next states. Okay. So this is capital Y1, capital Y2 next state, and small y1 and y2 are present state variables. Okay. So this is present state. So when this is 0, 0. So when x is equal to 0, what is the output? It is 0, 0. Okay. When x is equal to 1, it is 0, 1. When y1 and y2 are 0, 1, 0, 1. Okay. So this is y1 and this is y1. Okay. And these are capital Y1 and Y2 respectively. Okay. So when this is 0, 1 or x is equal to 0, this is 1, 1. And for 1 x is equal to 1, it is 0, 1. Okay. Next state is 1, 0. But here it is 1, 1. So don't copy this. Okay. So next state is 1, 0. 1, 0 है तो ये लेना है, इसको मत लेना, क्योंकि यहाँ पर 0, 0, 1, 0, 1, 0 और 1, 1 ये के मैप के जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो ये हो गया 0, 0 हो जाएगा, ये 0, 0 और x इज इक्वल टू 1 पे मिल जाएगा 1, 0. ठीक है. डबल 1 के लिए डबल 1 जो x इज इक्वल टू 1 है और ये है 1, 0. ठीक है. Just we had copied this transition table here, and this is the state diagram for the given circuit. जो कल हमने सर्किट बनाया था उसका ये state diagram है. Okay, so you can draw a state diagram using this method. ठीक है. ट्रांजिशन टेबल बना दिए, जस्ट उसको वहां पे वर्ड्स में लिख दिया है और कुछ नहीं किया. ठीक है. ये जो मैप है यहाँ पर ये प्रेजेंट स्टेट बता रहा है, ये प्रेजेंट स्टेट हमने लिख दिया है. यहाँ पर ये x is equal to 0 के लिए, x is equal to 0 के लिए, और यहाँ पर ये x is equal to 1 के लिए वही वैल्यूज वहां पर लिख दो. बस यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, इट इज 0, 0, 0, 1 एंड 1, 1 है, लेकिन हम जो सीक्वेंस लिख रहे हैं वो 0, 0, 0, 1, 1, 0 है. तो कॉपी करते समय क्या होता है, हम ये वाला रो उठा के यहाँ लिख देते हैं, ये मत कीजिए. ठीक है. डोंट कॉपी इट बाइंडली. चलिए. Now, so this is the state table for the given circuit. जो सर्किट दिया था उसके लिए state table. Now last, we can construct a flow table. ठीक है. ये transition table और एक होता है flow table. ठीक है. इसमें क्या करते हैं हम flow table में, ये ट्रांजिशन टेबल का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 0, 0, 0, 1, 1, 1 इस तरीके से. तो हम क्या करते हैं, जो बाइनरीज दिए हुए हैं वेरिएबल्स उनको अल्फाबेटिक में चेंज कर लेते हैं. मान लीजिए 0, 0 को दे दिया हमने A. ठीक है. 0, 1 को B, 1, 0 को C एंड 1, 1 को D. ठीक है. जस्ट
We have replaced this 0 0 as A, 0 1 B, 1 0 as C and 1 1 as D. ठीक है, तो अब ये जो टेबल है ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, it will be replaced like this. This will be A, B, C and B. बस वही रिप्रेजेंटेशन है, बस 0 0 की जगह हम क्या करेंगे, उसको एक स्टेट दे रहे हैं A, B, C, D. ठीक है, कोई बस मीनिंग्स और कुछ नहीं है. So this transition table is converted to, in this fashion, it is known as flow table. Okay, where this binary digits are converted to a alphabet. ठीक है, अब ये 0 0 क्या है, A है, फिर 0 1 is B, then it is 1 1 1 1 is D. This must be B. Again B. These circles represent stable states. 1 0 is C. 0 0 is A. And this will be C. This is 4 states. Four states with one input. एक इनपुट दिया हमने यहाँ पर x, ठीक है, 0 के लिए 1 के लिए आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, 4 स्टेट्स मिल रहे हैं. ठीक है, the flow table is similar to transition table, except that the internal states, these are internal states. जो बॉक्सेस के अंदर में रखे हैं, स्क्वायर के अंदर में रखे हैं, these are internal states, और ये जो बाहर लिखा हुआ है ये एक्सटर्नल स्टेट्स. ठीक है, जो आपका नेक्स्ट स्टेट्स जो है वो इंटरनल स्टेट्स हैं, और यहाँ जो बाहर है जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं वो एक्सटर्नल स्टेट्स. ठीक है, सो a flow table is similar to transition table, except the internal state are symbolized
with letter, with symbolized with letter, हम क्या कर रहे हैं, with letter के साथ इसको symbolize कर रहे हैं, rather than binary numbers. The flow table also includes output values of the circuit for each stable state. This is figure A. Figure A is also called as primitive flow table. It is also known as primitive flow table because it has only one stable state. It has only one stable state in each row. One stable state in each row. ठीक है, यहां पर देखिए हर रो में एक स्टेबल स्टेट्स है यहां पर. ठीक है, तो अगर किसी फ्लो टेबल में बस एक स्टेबल स्टेट है, then this type of flow table will be known as primitive flow table. ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा होगा, ठीक है, और ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकते, एक भी वहां पर नहीं है. ठीक है, एक भी स्टेबल कंडीशन वहां पर नहीं है, मान लीजिए 0 1. ठीक है, स्टेबल कब होता है, जब ये दोनों सेम होते हैं तभी इसे स्टेबल कहते हैं. यहाँ पर एक भी नहीं है. दिस इज नॉट ए प्रिमिटिव फ्लो टेबल. ठीक है, हर रो में सिंगल वहां पर स्टेबल कंडीशन होना चाहिए, स्टेबल स्टेट होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम प्रिमिटिव फ्लो टेबल. हर रो में एक सिंगल स्टेट जो है वो स्टेबल होना चाहिए. This type of flow table is referred as primitive flow table. ठीक है, सर तो वो स्टेबल है कि नहीं, किसमें वो जो भी कंडीशन वो स्टेबल हुआ कि नहीं, वो तो फिर बाद में चेक करना पड़ेगा. जरूरी नहीं कि हमेशा स्टेबल रहे, अनस्टेबल भी हो सकता है. ठीक है, फिर उसके लिए मैंने बताया ना, रोज को चेक करते हैं, हर रो में से वो स्टेबिलिटी की दी. ठीक है, वो सब उसके लिए फिर कॉलम को चेक कीजिए ना, फिर यू गो विद कॉलम्स, जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब हमने क्या किया कि एक डायग्राम दिया था, उससे हमने यहाँ पर क्या किया, फ्लो टेबल बनाया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे इसका रिवर्स करेंगे. अगर आपको फ्लो टेबल दिया हुआ है, उससे आपको सर्किट बनाना है, जस्ट रिवर्स. ठीक है, कल हमने कहां से स्टार्ट किया था, एक सर्किट दिया हुआ था, उससे हमने पूरा एनालाइज करके एंड अप वी हैव एंड अप विद फ्लो टेबल. नाउ वी विल गिवन विद द फ्लो टेबल and we have to draw its respective circuit diagram. Okay, so this is our aim.
So a flow table is given. Now tell me, is this system stable or not? सिस्टम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हर कॉलम में मिनिमम एक स्टेट जो है वो वहां पर क्या है, एनसर्कल्ड है। एनसर्कल का मतलब क्या होता है, वो स्टेबल है। इस कॉलम में एक है, इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें एक है। ठीक है, अगर ये एनसर्कल नहीं होता तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम होता। जो सर्किट दिया हुआ है वो अनस्टेबल होता, क्योंकि हम उसमें क्या देखते हैं, कॉलम्स को देखते हैं। हर कॉलम में मिनिमम एक स्टेट वहां पर स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये फुलफिल कर रहा है उस क्राइटेरिया को। ठीक है, चलिए अब इसका आउटपुट भी यही दे दिया हुआ है। सर इसी में प्लग कर दिया उसने, स्टेट भी दे दिया है। ठीक है, ठीक है, ये सिंबल जो अल्फाबेटिकल है वो आपका स्टेट्स बता रहा है, नेक्स्ट स्टेट बता रहा है। ये जो ए बी है वो प्रेजेंट स्टेट बता रहा है, और कॉमा के जो लिखा हुआ है वो क्या है, आउटपुट। ठीक है, ये इसी में इसने वहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिया। So उसका ये है, डिजाइन a asynchronous sequential circuit of the given flow table. Design a asynchronous sequential circuit of the given figure. So we have to, what we have to do, we have to go in reverse order. Okay, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, पहले सर्किट से मैप बनाया था और मैप को क्लब करके हमने यहाँ पर क्या किया था, एक फ्लो टेबल बनाया था, ट्रांजिशन टेबल बनाया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा करेंगे। ये जो ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है, फ्लो टेबल दिया हुआ है, उसको हम पहले क्या करेंगे, मैप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वहां पर क्या करेंगे, हम दो मैप में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
ओके, तो हमने क्या किया, इस ट्रांजिशन टेबल को दो मैप में हमने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, सर्किट बनाना है। ठीक है, सर्किट बनाने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी एक सीक्वेंशियल सर्किट बनाना है या कोई भी सर्किट बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहां से आप सर्किट बनाते हो, उसका ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल के बाद क्या मिलता है, एक बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये पॉसिबल है क्योंकि ये सारा किसमें दिया हुआ है 0101, तो इसका के मैप बन जाएगा। क्या आप इसका के मैप बना सकते हो, नहीं बना सकते क्योंकि वो 01 में होना चाहिए हमेशा। ठीक है, so we have to convert this flow table again to transition table। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a को 0 मान रहे हैं और b को 1 मान रहे हैं। ठीक है, तो एक assumption लिया हमने, a को 0 आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, a को मैंने 0 ले लिया, 0 हो गया 0 0 1 0 0 1 1, so this will be this। ठीक है, so a is equal to 0 and b is equal to 1, so for next, so this is flow table। ठीक है, जहां पर सिंबल्स होंगे a b c d। ठीक है, और जहां पर ये बाइनरीज होंगे उनको कहते हैं हम ट्रांजिशन टेबल। इसका आंसर यही है, 0 और 1 क्यों लिया हमने। तो ये 0 होता है और ये 1 होता है, इसलिए a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे क्या बन रहा है, किसके पेयर्स बन रहे हैं, दो पेयर बन रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, नहीं मत लो उसको, क्योंकि यहाँ पर तो ये फिक्स है ना, ये 0 या 1 ही होगा। के मैप में जब बनाते हैं तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। डायग्राम में वैसे दिया हुआ a और ये b, तो एज इट इज उसको रखना। ठीक है, चेंज, और यहाँ पर बस a यहाँ पर मिल रहा है 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0। ठीक है, ये वेरिएबल्स हमने ले लिया है x1 x2, ये हो जाएगा x1 x2 होल बार x1 x2 x1 x2 x1 x2 0 का बार यहाँ पर, ये है y बार और ये y। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 इसका होल बार, ये बार एंड ये y बार एंड यहाँ पर कितनी वैल्यू वाली वेक्टर बनानी और यहाँ z। ठीक है, तो क्या करना है, ये टेबल दिया है, इसको अलग अलग कर लीजिए, a b सॉरी a और यहाँ हो जाएगा a b, इसको अलग बना लिया हमने। ठीक है, और जो आउटपुट दिया हुआ है वो अलग कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन ये क्या है, फ्लो टेबल है, फ्लो टेबल से आप के मैप को ड्राइव नहीं कर सकते, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, यहाँ पर ये a दिया है, ये b दिया, के मैप में ये 0 होता है और ये 1 होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 ले लीजिए और b की वैल्यू 1, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक के मैप। दो के मैप है, ये है आपके नेक्स्ट स्टेट है
और ये किसके लिए, आउटपुट के लिए। ठीक है, अब यहां से आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा और आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, किसी का आया आउटपुट y की वैल्यू, कैपिटल Y की वैल्यू। देखिए यहां पर ये कॉलम कांस्टेंट है, ये दोनों वेरी हो रहा है, ये नहीं देंगे। ये कॉलम है x1 और x2 बार। ठीक है, और यहाँ पर y कांस्टेंट है, y रहेगा, और क्या चेंज हो रहा है, x1 कांस्टेंट है, x1, और x2 चेंज हो रहा है तो x2 लिख देंगे। तो ये मिलेगा आपको y1 की वैल्यू, y की वैल्यू, और यहाँ ये सिग्नल रखा हुआ है। ठीक है, x1, x2 एंड y। तो ड्रॉ दिस टेबल। ठीक है, आपको क्या चाहिए, y का आउटपुट मिलना चाहिए यहाँ पर, y यहाँ y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से ये आपका आउटपुट और ये नेक्स्ट बनाइए। आउटपुट डायग्राम बना लीजिए। बना सकते हो। देखिए आउटपुट में आ रहा है x1, x2 और y। ये है x1, x2 एंड y। ठीक है, और यहां पर आ रहा है x1, एक आ रहा है ये x1, दूसरा है x2 बार, ये है x2। इसको ज्वाइन कर वो है, ये है ये हो गया x2 बार और ये x1। दूसरे में है x1, दिस इज x1,
और ये y, और इसको आपको वापस लाना होगा। ये हमेशा याद रखना, सीक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट है वही वापस फीडबैक होके आपके प्रेजेंट स्टेट पे जाता है। यहाँ पर बीच में क्या लगाते हैं, हम डिले लगाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना, जो जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो इट विल गो बैक, दिस विल बी योर फीडबैक। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में जो नेक्स्ट स्टेट होता है वही डिले करके हम वापस लेते हैं प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, ये बनाना भूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बस एक आपको एग्जाम में आपको एक फ्लो टेबल देगा, जरूरी नहीं कि दोनों कंबाइन करके अलग अलग भी दे सकता है, आउटपुट भी अलग और उसके अलग। ठीक है, अलग अलग हमेशा फ्लो डायग्राम देगा, उसको आपको ट्रांजिशन में चेंज करना है, उसका के मैप बना के एक्सप्रेशन निकालना है और सर्किट बनाना है। कोई भी सर्किट बनाने के लिए आपको बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, वो कहां से मिलेगा, आपको के मैप से। ठीक है, और या आप ट्रुथ टेबल से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज नेक्स्ट इज next topic is race. A race condition is set. A race condition is said to exist, is said to exist in a asynchronous sequential circuit, in a asequential synchronous circuit when two or more binary state variables, when two and more binary state variable change value in response to a change, in response to a change in input variable, in input variable. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टू और मोर बाइनरी स्टेट वेरिएबल चेंज, दो और उससे ज्यादा वहां पर बाइनरी जो स्टेट है वो चेंज होते हैं जब आप व्हेन इनपुट चेंजेस। ठीक है, मतलब जैसे ये स्टेट है, ये चार स्टेट है हमारे पास, ठीक है, अगर ये 0 0 से 1 0 होता है तो कितने बाइनरी स्टेट चेंज हो रहे हैं, 1। ठीक है, नो इशू। ये हुआ 1 0, ठीक है, और ये हुआ 1 1। हर केस में एक ही बाइनरी वहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऐसा हो गया, कहां पर 0 1 के, ये हमेशा ऊपर में, इसलिए हमेशा ऐसा। ठीक है, अगर ये 0 0 से, या जैसे यहां पर हुआ था 1 0 से, सॉरी 0 1 से 1 0 हो गया, तो वहां पर कितने चेंज हो रहे हैं, 2 बिट वहां पर चेंज हो रहे हैं, 2 बाइनरी बिट चेंज हो रहे हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हम रेस कंडीशन, व्हेन 2 और मोर बाइनरी स्टेट वेरिएबल्स चेंजेस व्हेन इनपुट चेंजेस। So this phenomena is known as race condition.
ठीक है, जैसे हाँ जा। यहाँ पर नहीं आएगा, जब एक ही यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, एक ही स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पर देखो दोनों चेंज हो गए, ठीक है। हाँ लास्ट बेंच आप इसमें बताइए कौन से स्टेबल स्टेट्स है। हाँ फर्स्ट वाला इसलिए है क्योंकि जो ये है प्रेजेंट स्टेट, दिस स्टेट इज नोन एज प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। स्मॉल y1 और y2 जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट स्टेट या करंट स्टेट कहलाता है, ठीक है, जो बाहर लिखते हैं, और जो अंदर लिखे हैं हमने ये कैपिटल y1 और कैपिटल y2 है, ठीक है। दिस इज कैपिटल y1 एंड कैपिटल y2। व्हेनेवर प्रेजेंट स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, y स्मॉल yi इज इक्वल टू कैपिटल yi, दिस स्टेट इज स्टेबल स्टेट, ये स्टेबल स्टेट है। यहाँ भी 0 0 है, यहाँ भी 0 0 है, तो ये स्टेबल है। ये स्टेबल होगा क्या, ये हाँ ये वाला देखिए, ये 0 1 है, ये 1 1 है, नहीं होगा। ये 1 1 है, ये 1 1 है, नहीं बोलता है। हाँ 1 0 और 1 1 नहीं होगा। यहाँ पर बस एक ही स्टेबल स्टेट है, अदर देन 0 0 चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये 0 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 सही है, ये 1 0 और ये 1 1। हाँ अभी बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये अभी जरूरत नहीं है, अभी हम ये रेस कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो कैसे ये जाएगा उसकी जरूरत है। आप वहां तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। You can write as 0 1 0 0 0 and 0, you can write it, okay, so there will be no change here। अब देखिए, जैसे ये हुआ 0 0, ठीक है, इसके लिए x की वैल्यू 0 पर, जब मैं x की वैल्यू 1 किया मैं यहाँ पर, ठीक है, ये कितना हो गया 1 हो गया, और उस समय इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 1 हो गई, ठीक है। तो ये किससे हो गया 0 0 से, पहला जो एक पॉसिबल यहाँ पर है वो क्या हो गया 1 1 हो गया। ये कंडीशन कौन सा हो गया, रेस कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज रेस कंडीशन। क्यों, क्योंकि यहाँ इनपुट चेंज हो रहा है। व्हेन इनपुट चेंजेस, इनपुट क्या था पहले x 0 था, और जैसे ही मैंने x 1 किया तो जो स्टेट था वो 0 0 से कहां चला गया 1 1 पे चला गया। यहाँ पर 2 बिट चेंज हो रहे हैं, 2 or more bit changes when input changes in response to input change, then this referred as race, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम याद होगा सिंक्रोनस का, ये यहाँ पर इनपुट्स है x up to xn और आउटपुट्स में ये z1 z2 up to zn, ठीक है। और यहाँ था ये कैपिटल Y और ये स्मॉल y, याद आ रहा है, ये है प्रेजेंट स्टेट और ये है नेक्स्ट स्टेट। तो कुछ डिले के बाद ये जो आउटपुट है वही क्या बन जाता है इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका 1 1, नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 1, और ये थोड़ी देर बाद कुछ डिले के बाद, जो भी आप डिले वहां प्रोवाइड कर रहे हो नैनो सेकंड्स के बाद, ये 1 1 क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पर जो स्टेट है, स्टेबल स्टेट कितना है वो 1 1, इनपुट रिमेन्स एट 1, ठीक है। तो ये यहाँ आके रुक जाएगा,
ये तब तक ऑसिलेट करता है जब तक उसको कोई स्टेबल स्टेट ना मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही आया ये 1 1 तो ये हो गया, यहाँ पर ये रुक जाएगा, इसका ये स्टेबल स्टेट। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ डिले के कारण यहाँ पर कुछ डिले हो गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये क्या हो रहा है 0 0 से 1 1 हो रहा है। ठीक है, उस डिले के कारण ये 0 0 से 0 1 हो गया, y1 थोड़ा सा लेट हो गया y2 से, y2 इज फास्टर। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, y2 इज फास्टर। आइडियली क्या होना चाहिए, इसको 1 1 होना था, लेकिन कुछ डिले के कारण, कुछ प्रोपोगेशन डिले के कारण, अनवांटेड डिले के कारण सिस्टम में ये जो यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ वो हुआ 0 1, और ये भी स्टेट है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्टेट भी प्रेजेंट है। क्या स्टेट है वो 0 1। ठीक है, अब ये 0 1 यहाँ पर जैसे ही आप x = 1 करोगे तो उसको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0 से 0 1 और ये हो जाएगा फिर 1 1। ठीक है, अब ये 1 1 क्या होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, वो इनपुट हो जाएगा। तो ये हो गया 1 1 और यहाँ से फिर इसको ये हो जाएगा 1 1, तो ये हो गया, यहाँ पर ये स्टेबल स्टेट मिल गया, वो वही लिख जाएगा। ठीक है, तो यही एक डिसएडवांटेज है इस एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में। अगर यहाँ पर कुछ अनइवन प्रोपोगेशन डिले होता है तो इस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है कि जो आउटपुट मिलना था वो नहीं मिलेगा, यहाँ पर वो दूसरा फिर पाथ वहां पर ले सकता है या रेस कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा जो डिले देना है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कि दोनों एक साथ 1 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगली बार ऐसा हो गया ये 0 0 हो गया और ये 1 0 हो गया। ठीक है, तो 0 0 और 1 0 हो गया तो कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। जाना कहां था उसको, आइडियली यहां जाना था, लेकिन ये पहुंचेगा कहां, यहां पर। ठीक है, अब इसका देखिए जो x = 1 पे क्या है, 1 1 है, आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1 1, और ये 1 1 कुछ देर के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट बन जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा इनपुट, और फिर से ये अपना जो फाइनल स्टेट है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो रेस कंडीशन है दे आर रिफर्ड एज नॉन क्रिटिकल रेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस, but first one is non critical race and second one is critical race, जहां पर आपको जो स्टेबल कंडीशन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कोई पाथ में, लेकिन अल्टीमेटली वो वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ, सो दिस इज नॉन क्रिटिकल रेस। ये एग्जांपल, इसको लिख लीजिए। हाँ, बता रहा हूं। This is your line. When unequal delay encountered, a race condition may cause the, when unequal delay encountered, a race condition may cause the state variables
to change in a unpredictable manner. When unequal delay encountered, a race condition may cause, ठीक है, जब अनइक्वल, ये जो बात हो रही थी, अनइक्वल जो डिले यहाँ पर अगर एनकाउंटर करेगा, सो अ रेस कंडीशन में occur, may cause the state variable to change in unpredictable manner, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये 0-1 भी हो सकता है, 1-0 भी हो सकता है, कौन सा फास्टर है वो हमको वहां पर देखना है, ठीक है। इस केस में देखिए, ठीक है, ये y1, ये y2 और ये x, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो जब y1 0-0 है, ठीक है, x = 0 पे 0-0 पे स्टेबल कंडीशन पे, जैसे ही मैं x = 1 करूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1-1 हो जाएगी, इट विल चेंज टू 1-1, ठीक है। और ये 1-1 अभी क्या है, x नेक्स्ट स्टेट है, थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, कुछ नैनो सेकंड्स बाद ये क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये इनपुट जो है वो है 1-1, और ये मतलब ये जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, विच इज ए स्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये इसका क्या है, स्टेबल कंडीशन है, 0-0 का क्या है, ये स्टेबल कंडीशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ डिले हुआ, ये हो गया 0-1 हो गया, ठीक है, कुछ अनवांटेड डिले कारण क्या हो गया, ये 0-1 हो गया, तो 0-1 ये है, ठीक है, और 0-1 का जो स्टेबल कंडीशन क्या है, वो 0-1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 0-0 से ये हो गया 0-1, ठीक है। तो 0-1 का स्टेबल कंडीशन ये है, लेकिन आपको चाहिए क्या था, 1-1, तो ये क्या है यहाँ पर, ये रॉन्ग स्टेबल कंडीशन, स्टेबल स्टेट। आइडियली क्या होना चाहिए था, इसको 1-1 होना था, लेकिन ये आगे कहां रुक जा रहा है, 0-1 है, ठीक है। नॉन क्रिटिकल में ऐसा नहीं है, नॉन क्रिटिकल में वो 1-1 पे ही जाके रुक रहा है, लेकिन वो अलग अलग पाथ से जा रहा है, ठीक है। दूसरा 0-0 से 1-0 हो गया, 0-0 से 1-0, ठीक है, तो ये पहुंचेगा यहाँ पर, और 1-0 का जो आउटपुट है वो कितना है, 1-0 ही है, तो वो भी स्टेबल कंडीशन है, ये यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन इसको कहां रुकना था, 1-1 पे रुकना था, तो अगेन देयर विल बी अ रॉन्ग stable state. This condition is critical race and this should be avoided. ये कभी नहीं होना चाहिए critical race, क्यों, क्योंकि आपको जहां जो स्टेबल स्टेट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उसके अलावा दूसरा कोई और मिल रहा है। क्रिटिकल एक बार चलेगा, यहाँ पर थोड़ा डिले बढ़ेगा आपका, ठीक है, लेकिन कभी भी ये क्रिटिकल रेस नहीं होना चाहिए, there should be no critical racing, this is more dangerous than this non, इसलिए नाम भी है नॉन क्रिटिकल एंड इट इज क्रिटिकल रेस, ठीक है। देखिए ये है स्टेबल स्टेट, हमने यहां से स्टार्ट किया, और इसका जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, लेकिन किसी अनवांटेड डिले के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है,
आपको अलग अलग यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, ट्रांजिशंस मिल रहे हैं स्टेट्स के बीच में। ठीक है, मुझे मिला था 1 1, यहाँ मिल रहा है 0 1 और ये मिल रहा है 1 0, which is unacceptable, undesirable। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो दीज आर रेस कंडीशन। इसको अवॉइड करने के भी मेथड्स हैं, कैसे रेस फ्री किया जाए आपके। देखो यही दिक्कत है जब आप क्लॉक नहीं लगाते हो, क्योंकि अब जैसे ही आप इनपुट चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्योंकि क्लॉक में क्या होता है, जिस क्लॉक में दे रहे हो वहीं पर वो स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट जब चेंज होता है तो आउटपुट आपको मिलता है, और वहां पे कहीं भी गलती से आपका थोड़ा सा भी नैनो सेकेंड के लिए वहां पर अगर डिफरेंस हो गया तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो शुरू में बताया था कि एक साथ एक समय पे एक ही इनपुट काम करना चाहिए, उसके साथ डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अनवांटेड वहां पर डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, so this is race। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।